But yet, on the other side, I was totally alien. I was totally invisible in the industry. I'm blessed कि लोग मेरे लिए wait करते रहे and they welcomed me by this song. वाह, समझ रहे हो समझ रहे हो I didn't like the whole idea of saying कि शादी वाले singers की औकात नहीं होती. That's a very blunt, that's a very, I'm sorry to say, that's a very down market line यार. Down market statement to just tell some artist कि तुम शादी में गाओगे तो तुम्हारी औकात नहीं होगी. शायद ही शाहरुख खान साहब के लिए किसी ने प्लेबैक किया हो अभिजीत सर से ज़्यादा. बट या मतलब मुझे वो बात बहुत पिंच हुई. आई गोना रिपीट अगेन. तो सना इज गोना विन. तो आई हैड दिस सना इन माय माइंड. बाकी मुझे लवकेश अच्छा लगा. लवकेश प्योर लगा मुझे. फिर तो वी नो. फिर शादी हो गई. फिर बस फिर टोला वे टोला हाई टोला. हनी सिंह के साथ साथ एक करियर डूबता हुआ और नजर आ रहा है. दैट्स मिलन गावा. Hi everyone, welcome to yet another episode of Spill the Beans on CNN News 18 with me Sakshi Singh Litoria. Today in our studios we got a very special guest, Milind Gawa. Everyone, clap clap clap. Thank you so much. He's come with a new song, Dola. Just tell us about it, Milind. We are so excited for the song. It's very beautiful already, and you will connect the lines with a lot of real life situation also. Did you connect? Did you relate? I'm not gonna give that scoop to all of us. Okay, so Dola is a new age urban, very local heartbreak song. The basic old Dola is क्या कहते हैं उसे celebratory song, which is sung when something is celebrated, you know, in the marriages or in happy times. But the version of mine is a total opposite. It has a total contrast version. The artist is celebrating his breakup, being betrayed by his beloved. So yeah, matlab the artist is loud about कि he has lost the war of love, and he's celebrating his the क्या कहेंगे उसको, celebrating the loss of love basically. Celebrating the pain. Celebrating basically. the pain, yeah. Okay, and काफी जब मैंने वीडियो देखी, it gave me chills by the look that you had, the blood, the action, मार धाड़. काफी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है. आपने एक्टिंग की प्रैक्टिस की है क्या? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी. मतलब जब मैंने गाना बनाया तो I had this thing in mind कि this has to be a major characteristics of the main artist, the lead, जो मैं प्ले करने वाला था. मुझे थोड़ा कच्चा पक्का आइडिया था कि मैंने ऐसे ऐसे प्ले करना है. मैंने कहीं से एक्टिंग की ट्रेनिंग भी नहीं ली. आई रिग्रेट जब मुझे एक्टिंग के बारे में समझ आया तो बहुत लेट हो चुका था. जब मुझे NSD के बारे में समझ आया तो मैं बहुत लेट हो चुका था. बट या मतलब मैं कोशिश करता हूँ. माई फेवरेट एक्टर इज़ आमिर खान साहब. आई लुक अप टू हिम. आई ट्राई टू ग्रैब समथिंग और द अदर फ्रॉम हिम. कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मैच्योर एक्टिंग करूँ. यहाँ पे बहुत अलग रोल था, अलग सिनेरियो था. यहाँ पे साइको, द आर्टिस्ट इज साइको, मैड, रिबेलियस, अग्रेसिव, और क्या कह सकते हैं, पागल एकदम, काफी कबीर सिंह आउट ऑफ कंट्रोल. काफी कबीर सिंह. हाँ मतलब कबीर सिंह भी और psycho, मतलब he's under the influence of something or the other. Maybe शराब से ज़्यादा उसे breakup का नशा है जो तो ऐसा मैंने करने की कोशिश की. But आपने in the past you have done acting, right? You have done a gig in the Punjabi movie, if I'm not wrong. Yes, I had done it, and that was back in 2011. Yes. No, you better don't talk about it. I was a kid. तो you are an expert. तो मैं ये तो नहीं बोलना चाहती हूँ. नहीं मैं expert नहीं हूँ. I just love acting. I just love doing it. I don't know the technicalities. I don't know. I took a workshop जब ये Stupid 7 हुई थी back in 2011. But उसको बहुत अभी 13 साल हो गए हैं उसको. तो अभी सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है. इसके लिए मैंने कोई वर्कशॉप नहीं ली और बस जितना देखा फिल्मों से ही देखा बस ऐसा. बट आपके म्यूजिक वीडियो में you are the sole hero and you are doing absolutely amazing when it comes to the acting part. Do you have ambition to work in a movie also? ये बढ़िया बात है. हाँ बिल्कुल.
सी एक्टिंग आई हैव दिस बिग कीड़ा इन मी ऑफ एक्टिंग. तो जब भी कुछ ऐसा लगता है कि मैं जिसमें एक्ट कर सकता हूँ या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाता हूँ जिसमें मैं एक्ट कर सकता हूँ, आई सबसे पहले खड़ा होता हूँ मैं कि आई वांट टू एक्ट लाइक दिस. आई मेट सो मेनी डायरेक्टर्स फॉर दिस सॉन्ग, बट रूपन बल वाज देयर टू सपोर्ट माय आइडिया ऑफ. पहले मेरा आइडिया था वो तेरे इश्क में नाचेंगे टाइप राजा हिंदुस्तानी वाला गाना नहीं था. तो वैसा गाना वैसा वो था. तो रूपन केम अप विद दिस आइडिया कि अगर तुमने एक्टिंग करनी है तो लेट्स मेक इट काइंड ऑफ शॉर्ट फिल्म टाइप. तो इसका टीजर भी कुछ 2 सवा 2 मिनट का है और गाना भी कुछ, तो सारा मिला के 5 साढ़े 5 मिनट का है. तो इट्स जस्ट लाइक अ शॉर्ट फिल्म. तो रूपन सपोर्टेड मी एंड ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब. Yes, absolutely. And अगर मैं थोड़ा मार धाड़ की बात करूँ, थोड़ा alcohol, because you have touched upon it, I really want to talk about that viral video. What was that? You have to tell us about that famous, infamous alcohol influence के अंदर video that The gone famous viral. alcohol drunk क्या कहते हैं उसको, drunk Drunk man and aggressive, aggressive, Milind Gaba in the office. creating ruckus in T series office. नहीं, वो मेरा ही आइडिया था. मुझे चाहिए था कि इस गाने से पहले थोड़ा सा मैं इसको पब्लिसाइज करने का तरीका कुछ और था, इसका प्री प्रमोशन करने का तरीका कुछ और था. दैट वाज माय आइडिया. मुझे था कि थोड़ा सा ये जो क्यूट बॉय, ग्राउंडेड, हम्बल और ये भोला भाला इमेज, इन अ सेंस नाइव काइंड मेरी इमेज बनी हुई है, वो टोटली ऑपोजिट हो. लोग सोचें कि यार इसको क्या हो गया, मतलब ही वाज नेवर लाइक दैट. तो आई थॉट ऑफ एंड आई डिस्कस्ड इट विद टी सीरीज कि मैं यहाँ पे तोड़ फोड़ करने वाला हूँ यहाँ पे आके, और ये मेरा आइडिया है एंड लेट्स पुश इट ऐसा करके. तो ऐसा हमने किया एंड पीपल गॉट सो मच वरीड अबाउट कि बहुत सारे न्यूज़, आपके भी न्यूज़ चैनल का कॉल आया था मुझे कि कैन यू कम लाइव. मैंने कहा अभी गाने के बाद प्लीज. तो बट या मतलब मुझे चाहिए था टू ग्रैब द अटेंशन, वो हो गया. तो that's why you are asking maybe. Yeah, yes, that's why maybe I touched upon that topic also. But did you go through the comment section of the video? Like, I really want to understand the perspective of a musician when it comes to the online trolling, how people are so quick to judge a person. See, I just take good things. मतलब मुझे अच्छा लगता है कि people are appreciating. मुझे अच्छा लगता है कि people are talking about my acting, people are talking about the music, the relatable rap content. Content which I have written. मुझे अच्छा लगता है, मतलब गाने की तारीफ हो रही है, मेरी एक्टिंग की तारीफ हो रही है, that's all. ठीक है ना. और people are talking about कि the old one is back. मुझे वो old और new में समझ नहीं आता कि why do people expect something old from me, or why do people expect some older version of any artist. मुझे ऐसा लगता है कि every day a man grows. ठीक है ना. जब आप तो पिछले 10 साल वाला जैसे एक्ट नहीं कर सकते है ना, 10 साल वाला बिहेव नहीं कर सकते जैसे आप पिछले 10 साल थे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, या कोई भी नहीं कर सकता. तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है. मुझे वो ये सिनेरियो ही समझ नहीं आता, फिनोमिना नहीं समझ नहीं आता. तो बट जो भी है, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ, येट बीइंग रिलेटेबल टू माय ऑडियंस, येट बीइंग वेरी लोकल, वेरी अर्दी, वेरी रॉ, विदाउट फिल्टर. मैं कोशिश करी मैंने, and that's why I think they are liking it. Beautiful, fairly put. But मैं थोड़ा सा पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का सिनेरियो भी आपसे समझना चाह रही थी मिलिंद, because we hear of a lot of dissing culture and fights happening within the musicians and rappers, because you have already touched upon that people like your rapping element as well. How would you describe that? Is that all real? People are actually salty towards each other, not just through their music videos, but जब वो I real think life में that मिलते हैं? happens in hardcore rap industry. मतलब जो मैं hardcore rap नहीं करता. I'm not a rapper type kind of rapper. I just write my lines and I just don't sing them. I recite them. मतलब basically I tell a story. तो वो जो रैपिंग वाला वो होता है जिसमें डिसिंग डूसिंग होती है, वो तो हार्डकोर मेरे ख्याल में रैपिंग वाला होता है. और मे बी आई एम नॉट अवेयर कि वो क्या कल्चर है बेसिकली, उसको क्या कहते हैं, व्हाट्स द स्पेसिफिक वर्ड फॉर दैट. बट या मतलब मेरे साथ कोई डिसिंग विसिंग नहीं होती. हाँ, ट्रोल्स को हैंडल करना मतलब इट्स ऑल, सी एट द एंड इफ यू आर गेनिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, Definitely. हर एक चीज़ का ऊपर नीचे वाला साइड होता है. एंड
ये चीज़ मैंने खुद ही चूज़ की है, ये प्रोफेशन मैंने खुद ही चूज़ किया है। एंड बजाय इसके कि मैं वो देखूं कि लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं या लोग मुझे अल्कोहलिक बोल रहे हैं या शराब से जोड़ रहे हैं या समथिंग लाइक दैट ब्ला ब्ला, मैं ये देखता हूँ कि लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग, मैं इतने टाइम तक, आई थिंक मैं 1 साल से गायब था। I was stuck in my family. I was busy मेरी बहन की शादी में. I was busy मुंबई शिफ्ट होने में. I was busy making music for my bank. But people kept on waiting for me. और ये बहुत कम आर्टिस्ट के साथ होता है, you know. People forget, मतलब उनकी आजकल मेमोरी आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, you know. That's why every artist is consistent. Every artist tries to be spontaneous, जल्दी frequent करते रहते हैं गाने. But yet on the other side I was totally alien. I was totally invisible in the industry. I'm blessed कि लोग मेरे लिए wait करते रहे and they welcomed me by this song very wholeheartedly with open arms. जैसे वो पहले थे वो अभी हैं. तो मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ, मैं अच्छाइयाँ देखता हूँ. उन बुराइयाँ तो मेरी हर एक आर्टिस्ट के डे 1 से चलती हैं और जब तक वो अलविदा नहीं कहता दुनिया को तब तक चलती हैं. बिल्कुल. तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना तो भाई. वाह, समझ रहे हो समझ रहे हो. इस बारे में भी हम बात करेंगे. लेकिन मिलिंद, यू आर वेरी वोकल अबाउट समथिंग दैट एक्चुअली पिंच्ड यू, अ renowned musician or an artist, if I could say. He said something about not singing in shadi or birthday parties on a very famous music show. You openly talked about it. What are your thoughts about it though? Was that comment in fact required? Because then you actually posted something very contrary to the statement. I didn't like the whole idea of saying कि शादी वाले singers की औकात नहीं होती. That's a very blunt, that's a very, I'm sorry to say, that's a very down market line यार. Down market statement to just tell some artist कि तुम शादी में गाओगे तो तुम्हारी औकात नहीं होगी. मैं शादी वाला सिंगर हूँ भाई. मैंने अपना घर बनाया, अपना मुंबई में घर लिया है, गाड़ी ली है, अपनी शादी की, अपनी बहन की शादी की. मेरे पेरेंट्स आर प्राउड ऑन above all. My parents are proud, my parents are contented, my parents are fulfilled every day. The moment they utter something from their mouth, वो चुटकी में उनके पास होती है, उनके पैरों में होती है. और ये सिर्फ शादी वाले शोज से किया मैंने. The artists like me are having major revenue from weddings only. है ना. अभी सितंबर श्राद्धों के बाद या नवरात्रों के बाद सीजन ऑन हो जाएगा टिल मार्च, होली तक. तो ये सब ये पीक सीजन होता है एंड काफ़ी सारे मेजर आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं यार. पिछले साल करण जौहर होस्टेड अ वेडिंग. पिछले साल अरिजीत सिंह परफॉर्म्ड इन अ वेडिंग. पिछले साल आई थिंक आलिया भट्ट परफॉर्म्ड इन अ वेडिंग. यहाँ पे दिल्ली में हुई थी, गुड़गांव में हुई थी. तो मैंने यही जाना कि ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट अच्छा हो तो वो ह्यूमन भी अच्छा है. आई जस्ट डोंट लाइक हिम. मतलब yes, I respect the work he has done. उनसे ज़्यादा मैंने अभी एक इंटरव्यू में बोला था कि उनसे ज़्यादा शायद ही शाहरुख खान साहब के लिए किसी ने प्लेबैक किया हो अभिजीत सर से ज़्यादा. बट या मतलब मुझे वो बात बहुत पिंच हुई. और या तो आप करो मत शोज, तब आप बोलो. आप करते भी हैं तो बोलते भी हैं. मतलब मैंने ये वीडियो डाली और मुझे एक एंकर का DM आया कि 2 दिन पहले मेरे साथ थे किसी शो में और वो तब भी एरोगेंट थे, ही वाज बिहेविंग रूड. तो मैंने कहा कौन सा शो था? कह रही इट वाज एन एंगेजमेंट सेरेमनी. तो मैंने कहा कैन यू सेंड मी द वीडियो. इंदौर की वीडियो थी वो, टू बी वेरी स्पेसिफिक इफ सर इज लिसनिंग. तो मैं कहा आप भेजो मुझे. तो मैंने भेजा एंड ही इज परफॉर्मिंग. ही इज इन हिज जोन, हिज हैप्पी जोन. ही इज परफॉर्मिंग. आई एम द बेस्ट, I'm the best, yes you are best. तो मैंने वही वीडियो लगा दी कि आप खुद करते हुए भी आप बच्चों को क्या सलाह दे रहे हैं. शादी में गाना कोई बुरी बात नहीं है. शादी वाले सिंगर्स को ऐसा नहीं है कि लोग बुरी नज़र से देखते हैं. आप जाके आप मेरे शो पे आइए, मेरा जलवा देखिए शादी में मैं क्या करता हूँ. यू विल बी प्राउड कि एंड यू विल टेक योर स्टेटमेंट बैक कि आप इतना शादी में परफॉर्म करके दिखाइए. आप
यू नो आप पब्लिक शोज़ पे परफॉर्म करते हैं, आप टिकटिंग शोज़ पे परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे लोग आपको सिर्फ देखने आते हैं। पब्लिक शोज़, टिकटिंग शोज़ पे आपको सिर्फ आपकी ग्लिम्स लेने आते हैं कि आपको पास से नज़र करने आते हैं, देखने आते हैं। बट शादी वाले शोज़ में ना लोग डोंट केयर कि हु यू आर। वहाँ पे आपको अपनी परफॉर्मेंस से आप लोगों का दिल जीतना होता है, यू नो। यू हैव टू नचाओ एवरीबडी, Absolutely. ठीक है ना। आप वहाँ पे हिट होंगे तो वहाँ पे और 200 लोग जो आए होंगे वो आपके क्लाइंट्स हैं इन अ वे, यू नो, एंड यू गेट बिजनेस, यू मेक ग्रीन्स, यू मेक मनी आउट ऑफ इट। तो पसंद नहीं आया मुझे। थोड़ा सा आपके बिग बॉस ओटीटी के बारे में भी बात करते जी। हैं. हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर देयर? ऑल्दो यू वर नॉट देयर फॉर लाइक वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट हाउ वाज द जर्नी? डिड यू फॉलो दिस? आई वाज देयर फॉर अ मंथ। हाँ मतलब नॉट लॉन्ग बट या जितना मुझे चाहिए था, मुझे लगता है कि जितना मुझे मेरे बारे में लिखा गया था, मेरे लिए लिखा गया था वो टाइम बाय द मैन अप देयर, बाय द वुमेन अप देयर, उतने टाइम के लिए था मैं। मेरा मकसद था बिग बॉस में जाने का कि खुद को डिस्कवर करना बेसिकली। अभी इतने सारे प्रोटोकॉल्स काफिला चलता है हमारे साथ, यू नो, नॉट ब्रैगिंग बट या मतलब दैट्स द प्रोटोकॉल। सिक्योरिटी होती है, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं, मैनेजमेंट टीम होती है, म्यूजिशियंस होते हैं, ब्ला ब्ला, मतलब एक्सेट्रा सब कुछ होता है। बट व्हाट इफ आई एम अलोन इन एन एलियन वर्ल्ड विदाउट एवरीथिंग ऑफ इट? तो डू आई हैव दिस एयर कि मेरे पास पैसा बहुत है, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, ठीक है ना, या तू जानता नहीं है मेरे 50 लाख फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, या तू जानता नहीं है मैं बिग बॉस का सबसे महंगा पर वीक आर्टिस्ट हूँ, या दिस एंड दैट। मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं आई एम वेरी प्राउड कि आई केम आउट वैसे ही जैसे मैं स्ट्रगल के डे 1 पे था, यू नो। नो हवाबाजी ऑफ एनी पैसा पूसा, नो स्टारडम, नो फेक, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो डबल चेहरे, नो डबल पर्सनालिटीज, दिस एंड दैट। पर जैसा लोकल दिल्ली वाला अभी हूँ, मैं पहले भी 18 साल की उम्र में जब मैंने चालू किया था म्यूज़िक, तब भी मैं वैसा ही था, बिग बॉस में वैसे था। आई केम आउट क्लीन एंड आई एम वेरी प्राउड। दूसरा मैं ये चाहता था कि तुम लोग मुझे देखो कि मैं भी गंदा लग सकता हूँ, यू नो, मैं भी आउट ऑफ शेप लग सकता हूँ। इट्स ओके, यू नो। ज़रूरी नहीं है कि जो आर्टिस्ट है या जो सेलिब्रिटी है या वो हमेशा अच्छा ही लगे, यू नो। बाल सुबह उठे भी तो बाल ऐसे बने हों और मेकअप पूरा ऐसा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो आई वांटेड पीपल टू नो कि मैं रियल लाइफ में और कैसा हूँ। आप मुझे एज एन आर्टिस्ट तो जान गए हैं, मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बिग बॉस के बाद मुझे काफ़ी सारी लेडीज़ मिली। लेडीज़ बोले तो मेरी मम्मी की उम्र की लेडीज़ मिली, जो यू नो भिंडी काटते काटते स्क्रीन में बिग बॉस देखती हैं, दिस वो। एंड आई गैदर्ड दैट ऑडियंस, यू नो। वो आके मुझे बोली कि मैं अभी यहाँ पे था बिग बॉस के बाद ना, मैं यहाँ पे गया था प्रोमेनाड गया था। सॉरी, आई एम बैड विद द वर्ड्स। प्रोमेनाड गया था, तो इतनी छोटी सी बुड्ढी सी आंटी थी एंड शी कुड बेयरली वॉक, मतलब बहुत स्लो स्पीड में चल रही थी वो। एंड आई वाज एट द काउंटर, मैंने मास्क मुझ पहना हुआ था एंड पता नहीं मुझे उन्होंने कैसे रिकॉग्नाइज किया एंड मेरी पीठ पे हाथ लगा के बोला, पहले वो थपथपाया तो बोला कि यू प्लेड बिग बॉस वेरी नाइस बेटा, आई वोटेड फॉर यू। तो मैं कहा यार, मैं कहा दैट वो इससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा आप कोई बंदा कुछ भी बोले, आई जस्ट वॉन्ट द वर्ल्ड। So did you watch this season? दिस सीजन हाँ, ऑन एंड ऑफ, बट या मतलब हाँ। Who were you rooting for? I knew Sana is gonna win. I knew that, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा सेम फॉर्मेट लगा, cause Sana was targeted from the day 1 और मेरे एपिसोड में भी दिव्या was targeted from the day 1, तो उसको अकेला किया गया था, Sana was cornered also। तो मुझे था ऐसा कि अगर if this is the same format, if this things are gonna repeat again, तो Sana is gonna win। तो I had this Sana in my mind। बाकी मुझे लवकेश अच्छा लगा, लवकेश प्योर लगा मुझे, अच्छा बढ़िया लगा। और बस रणवीर शौरी सर भी मुझे थोड़े से, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर।
ओके चलिए बात करते हैं योर बॉनमी और रिलेशन विद योर साले साहब। घर में ऐसा नोक-झोंक हंसी मजाक तो चलता रहता होगा। हाँ तो आप हमें बताइए थोड़ा बहुत हर्ष के और आपकी दोस्ती के बारे में भी, कि वो एकदम ऐसे जीजा साला वाला रिलेशन है या फ्रेंडशिप वाला नहीं, रिलेशन है? भाई वाला रिलेशन है वो। जीजा साला मैंने आने नहीं दिया वो, और वो भी नहीं आने देता। हर्ष से मैं मिला था, मेरी कंपनी ने टी सीरीज ने ही हर्ष को कांटेक्ट किया था। मेरा गाना आया था 2018 18 में आया था आई थिंक, हाँ, नज़र लग जाएगी। तो उस टाइम पे हर्ष जो वीडियोस बनाता था उसमें इंटीग्रेट करता था गाने। तो टी सीरीज ने बोला कि एक आर्टिस्ट है हमारा मिलिंद गावा, उसका गाना इंटीग्रेट करना है एंड इफ़ यू वांट ही कैन एक्ट इन योर वीडियो। तो हर्ष कहता कि ठीक है, ये तो बढ़िया है। और हर्ष वाज काइंड ऑफ फैन ऑफ मी मेरे पहले गाने से, दिस सिनेरियो। मतलब नॉट ब्रैगिंग, मतलब था, मतलब जो उसने बताया मुझे। तो ऐसे ऐसे बात हुई एंड उसके बाद फिर पबजी वाला दौर आ गया, फिर हम सारे पबजी खेलते थे। फिर मैं प्रिया से मिला फिर शादी हो गई। फिर तो वी नो फिर शादी हो गई फिर बस, फिर टोला भी टोला, हाय टोला। एंड अगर मैं आपके सॉन्ग्स की बात करूं, a lot of your songs have massively gone viral, specifically on Instagram also. तो आप मुझे बताओ कि इससे आपको क्या समझ में आता है? पूरा करके बताओ फिर बताऊंगा। मैं पूरा नहीं कर सकती। आई एम नॉट फेमस, आई एम नॉट लुकिंग फॉर, बिकॉज एक कांस्टेंट है कि वो आदमी कम बैक नहीं कर पा रहा है। हाँ, एंड आई थिंक यू कॉल्ड हिम ऑन स्टेज ऑल्सो ड्यूरिंग वन ऑफ योर कॉन्सर्ट्स। ही क्या कहते हैं, ही गेव मी अ सरप्राइज। वो था 31st का शो था मेरा, न्यू ईयर का शो था जयपुर। एंड मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एंड मेरी टीम ने कहा कि भाई पीछे कोई आया है। और मैंने ऐसे पीछे देखा तो मैंने कहा यार ये चेहरा कहाँ पे देखा हुआ है। तो फिर सारे मीम्स में, फिर सारे मीम्स उसने में। फिर इफ आई में स्टैंड अप, हाँ, फिर या। उसने ना ऐसे करके दिखाया मुझे। मैंने कहा फिश, मैंने कहा अच्छा तुम हो। मैं कहा तू आ, तेरे को शोकेस करे, तेरे को बताएं आज दुनिया को कि कुरैशी बॉय आए हैं। तो ही इज अ नाइस गाय, बढ़िया है, सही है। इफ यू पीपल से मेरा कमबैक दे दिया, हाँ भाई कमबैक दे दिया उसने फिर। नहीं उनका कमबैक नहीं हो पा रहा है। ही इज ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट मतलब डांस। क्या कमबैक का पता नहीं क्या लगाया हुआ है यार इन्होंने, ऑडियंस ने, समझ ही नहीं आता मुझे। एवरी आर्टिस्ट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि हर बॉल पे छक्का पड़े, ऐसा नहीं है। कभी कभी डक पे भी आउट हो जाते हैं, कभी कभी इक्का भी बनता है, कभी कभी 2 रन भी बनते हैं, कभी कभी चौका भी लगता है, कभी कभी बॉल स्टेडियम से बाहर भी जाती है। तो इतना सारा क्योस हो गया ना अभी, पैनिक हो गया, या इतना सारा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर दिया है ना। एज एन आर्टिस्ट मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम कहते हैं कि नो वी डोंट गेट अफेक्टेड फ्रॉम द ट्रोलर्स, आई डू एंड आई एम एक्सेप्टिंग, क्योंकि एन आर्टिस्ट इज़ वेरी सॉफ्ट फ्रॉम हार्ट, यू नो। और उसको कुछ भी कह दोगे ना, अगर आप उसका दिन बना दोगे यार, मतलब आप उसको कहो ना कि यार ये गाना बहुत अच्छा है, बट पहले वाले गाना ज़्यादा अच्छा था, ये भी अच्छा है। एक तो तरीका होता है ये। भाई इसमें भी कम बैक नहीं हो रहा, या इसमें भी हनी सिंह के साथ साथ एक करियर डूबता हुआ और नज़र आ रहा है, दैट्स मिलिंद गावा। तो अच्छा नहीं लगता अभी भी, मतलब बेसिकली उसको मुझे लगता है कि उसको और अच्छे तरीके से समझ के कहना चाहिए, या पोलाइटली कहना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। बट या मतलब दिस इज़ द वर्ल्ड, जहाँ पे, जो मैं कह रहा था, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है। और मैं चाहकर भी इनको अपने से अलग नहीं कर सकता, या मैं चाहकर भी इनको अवॉइड ही नहीं कर सकता। तो या आई सी द कमेंट्स एंड मैं उसको दिल पे नहीं लगाता बस अभी। कोशिश करता हूँ कि कम लगे, कोशिश करता हूँ कि अपने काम पे ही ध्यान दूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज़ें ही देखूँ मैं। या स्वीट, एंड दैट्स द कोपिंग मैकेनिज्म। मिलिंद, आप हमारे स्टूडियो आए हैं और हम आपको ऐसे ही जाने दे विदाउट यू सिंगिंग एटलीस्ट 2 लाइंस फॉर आवर व्यूअर्स, दैट्स नॉट पॉसिबल। Let me sing the rap then. No. If it's for the viewers, let me sing the rap then. सुन, तेरा हो गया, जो तेरा नए वाला था वो सो गया। अरे उसको भी प्रसाद बांट रही है क्या, मेरी तरह उसका भी काट रही है क्या। लहंगा डिसाइड तो कर लिया होगा, शेरवानी से मैचिंग कलर लिया होगा,
समुंदर के साइड वाला घर लिया होगा, हनीमून मेरे जैसा प्लान कर लिया होगा, देख स्नैपचैट की फ़ोटोज़ को हाइड कर दियो, डोमिनेट करेगी ये डिसाइड कर लियो, अपने हस्बैंड को अपनी ही साइड कर लियो, नाराज़ हो तो कभी कभी राइड कर लियो, बेवफाई का इनाम तुझे दे के मरूंगा, मैं तो मर ही रहा हूँ तुझे लेके मरूंगा, तू नहीं जानती कि तेरे आगे कौन खड़ा है, तेरा बड़े कुत्ते आशिक से पाला पड़ा है. Arre wow! Ladies and gentlemen, Milind Gawa, thank you so much for coming and talking to CNN News 18. Thank you so much. All the very best for Dhola. It's already doing very well. I've read the comment section also. People are actually liking it. Dhanyawad. I loved your acting. You are showing the prowess of your acting as well. All the very best for the upcoming projects as well. Thank you so much. Thank you. Shukriya. Thank you.